are the some of the participants which are joined in from, the dummy names. I can see one from Oppo F1F. So I would request you to check your profile name and change it to your real name, right? If you do not do so, we are really sorry. We need to remove you from the webinar, right? So please check your name and, change it to your real one. It is very important, for us to track whosoever are in the webinar, right? Apart from that, if you have any questions, if you want to ask anything from Mr. Asher, or or you got any question during the webinar, you can send that questions either to me. I am logged in by the name of Krish from Lemon, so you can send these questions to me, or maybe to everyone instead of Mr. Asher, because I am going to moderate these questions for you. See, what happens is when you will put in the questions, there is a lot of questions on the screen and we might miss some of the questions to be answered, right? So that's why I request you to either put your questions to everyone or to me instead of Mr. Asher, so that I can be able to moderate it, right? Anyone who is logged in, if the video is on, I would request you to please keep your video off. I can see some of the video on here. So please keep your video off and mics on mute. Right? Now, it's the important one. We will be needing this for the purpose of informing you further, about our webinars, or maybe the updates of this startup ecosystem in Central India, or maybe all over India. So we'll be needing your contact details for the same. So I would request you to mark your contact details in the chat box. I am marking mine. You may take the response reference from those content from that message, right? I'm marking my details, my contact details in the same format. I would want you to please put in your contact details, so that we would be able to connect to you further with regard to further updates related to this, related to such webinars or other updates of the startup ecosystem. We will be needing contact number. We will be needing, we will be needing contact number. We will be needing your email ID, and we will be needing your city. That's it, and your name also. So I have also I had put in my contact details for your reference, guys. So please put in your contact details in the chat box before we proceed ahead, right? So you may take reference from that message which I have just put in the chat box. Please open your chat box and just see it, and just mention your contact details in the chat box, so that we may be able to proceed ahead with the webinar. You can open the chat box and can, mark your contact details like I have mentioned recently. Okay, I can see a lot of responses coming now. Cool. I would request you to be very proactive, be very fast in responding to these messages, right? Be very fast in responding to these messages, because that's how we can generate the energy, or we can, show the energy of this webinar. Cool. I can see some of the responses coming on. Okay. Cool. I can see some of us joined in from Telangana. Some of the participants I have received the messages in person are joined in from Delhi also. Some of you are from Rajasthan also. Some of you are from Gujarat also. Cool. So apart from Maharashtra, we have, I think, the participation from maybe 6+ states, I think, in this webinar. Cool. That's, I think, a good analytics. I request you to please very proactive and very fast, in responding to these messages. Any one of you who have not responded here, please respond in the chat box, so that we would be able to know that where are you from, and then we would be able to connect to you further. Cool.
Now I'm moving forward with this. Anyone who has not, mentioned their contact details, please mention your contact details if you want to receive certain sort of information, like on your email ID. Make sure that you are mentioning your WhatsApp number, because we have recently started building a community by the name of Lemony Community. So in that community, we will be sharing a lot of reports related to the startup ecosystem, a lot of updates related to this ecosystem, a lot of updates related to Lemon ecosystem itself, a lot of updates related to the competitions, a lot of updates related to startup contests. So we have certain plans to grow that community further. If you want to be in that community, just mention your WhatsApp number. Make sure that you are mentioning your WhatsApp number there, so that we would be able to further add up add you to that community, so that the communication becomes much faster. Right? Cool. I am now moving forward, and I'm inviting Mukesh sir now. So Mukesh sir, I think you are on the call, right? Maybe you can just unmute your media, unmute your audio and switch on your video to just uh, facilitate this webinar further. Rest of the participants, I would request you to keep your video and audio off. Sir, I think your audio is off right now. Your mic is muted. Okay, fine. So friends, good morning to you all, and I take this pleasure in inviting you for this wonderful webinar on how the business will be post-Corona. Business after Corona. Corona के बाद क्या होगा? In fact, कोरोना का रोना रोते रोते तो आज हमको लगभग 30 दिन होते आ रहे हैं. And everybody today. Krish, I think you need to stop sharing your screen so that I can share. Is it visible? Is my screen visible to everybody? Yes, sir, it's visible. Okay, fine. Now, I'm Mukesh Ashar, and I take this opportunity to welcome you all for this wonderful webinar on what will the business be after Corona. Friends, I won't take much of time in setting the ball pitch and getting the ball rolling, because Krish has already done that task for me. और मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही कम समय में कुछ बेसिक लेवल की बात करूंगा. बेसिक लेवल की बात इसलिए कह रहा हूं because I may not be able to go into the details of any particular aspect, because we have people from different strata of the society, at the same time different domain of the businesses. Few may be in this program who are already into their own work. They might have started their work. Few might be into their work since last 10 years, 15 years. I've seen few of the names in the participants who appears to be quite experienced also. And we may have few who are still planning to start. So we have we have in fact heterogeneous group here. So I won't be able to go into the deep of any particular aspect. But yes, थोड़ा सा generalized बात आपके साथ में मैं जरूर करूँगा. Moving ahead, कोरोना कब खत्म होगा ये आपको और मुझे पता नहीं है. Let us be very optimistic and very positive, and start our presentation with a note that in next maybe month or so we'll be out of Corona. I understand that few might say कि सर ऐसा लगता तो नहीं है. ठीक है, लेकिन नहीं भी लगने से भी और तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपनी सोच को तो अपने तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं. हम महीने डेढ़ महीने के अंदर में ये कोरोना के पैंडेमिक से बाहर आ जाएंगे. अभी हमारा बिजनेस जो मोटा मार्केट बंद करके बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे शुरू होना चालू हो जाएगा.
अब हमको किस बात का ध्यान रखना है उसके ऊपर में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपके साथ में। डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। The world has faced similar pandemics and calamities not many times. It was only that most of them happened to one of the few countries. And how did it matter to you and me? भी किसी और देश में कोई प्रॉब्लम आया हुआ था तो सिर्फ हम लोग एक बार दो बार टीवी में उस न्यूज को सुन लेते थे और उसके ज्यादा हम उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करते थे और सोच भी नहीं पाते थे। अब उस परिस्थिति के अंदर में हमको सिर्फ मालूम पड़ जाता था and nothing much changed in our life. It's only now that there are very few to console and almost all are in the grief. But one strong thing about the mankind is that it forgets the past and always runs for the future. ये हमारी इंसानियत की बहुत जबरदस्त चीज है कि हम बहुत ज्यादा अपने पास्ट में जीते नहीं हैं, हम हमेशा पास्ट को भुला करके आगे बढ़ जाते हैं। और दिस अप्लाइज टू एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ, not only in this particular corona or calamities or pandemics or something which is problem to mankind, but हर चीज को इंसान भूलता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये समय भी निकल जाएगा और हम इसको भी भूल जाएंगे। बहुत सारी तकलीफ इसके पहले आई हुए इंसान को। 1918 से 1900 से ठीक 100 साल पहले लगभग स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक्स, आपको भी बहुत सारे व्हाट्सएप आए होंगे क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिवर्सिटी के रूप में आई हुई है, इवन बिगर देन द बिगेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेरेवर इन द वर्ल्ड। तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा टोटल डेथ वर्ल्ड वाइड वाज अराउंड 500 lakhs, 50 million and more for the death। मैं जो आंकड़े ले रहा हूँ वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट फिगर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो लिखा है वो एकदम सही है। कहीं भी किसी तरीके के आंकड़े जो कहूंगा वो 100% नहीं कहूंगा कि ये दावे के साथ सही है। आई मे बी यूजिंग द इंडिकेटर्स। 50 million people died. 1/3 of the world's population was infected by the Spanish flu. 100 years back, India lost more than 20 million lives. But क्या हो गया साहब? हम तो आगे बढ़ते गए। आज बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे जब मैं कहता हूं तो 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि 100 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसके अंदर में इतने लोग मारे गए थे। जो देखते हैं, जितना समझते हैं, उसके साथ उतने समय तक रहते हैं, समय गया हम उसके आगे निकल जाते हैं। 15 साल, 18 साल, 19 साल पहले गुजरात का अर्थक्वेक आया था साहब, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। ऐसा लग रहा था क्या बचेगा, 20,000 लोग मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ, आज गुजरात कितना आगे निकल गया है। 2004 में सुनामी आई थी, सिर्फ इंडिया में नहीं आई थी, कई देशों में उसका असर हुआ था। अराउंड 14-15 कंट्रीज वर बैडली अफेक्टेड। इंडोनेशिया वाज द वर्स्ट, बट इंडिया में भी उस समय लगभग 18-20 हजार लोग मारे गए थे। पूरे वर्ल्ड में उस समय 13-14 कंट्री मिला करके अराउंड 2.3 लाख लोग मारे गए थे साहब। कोरोना पिछले 4 महीने से हम लोग भुगत रहे हैं। दिसंबर में वुहान में शुरू हुआ है, तब से लेकर के हम भुगत रहे हैं। आई डोंट से कि और बढ़ना चाहिए, मैं तो समझता हूँ आज ही इसका बंद हो जाए आंकड़ा मरने का तो बहुत अच्छी बात है डेथ का। लेकिन फिर भी अराउंड वी आर से 1.5-1.75 के बीच में है हम लोग। मैं 2 दिन से तो पिछले ज्यादा न्यूज को देखा नहीं है कि आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इनटू समथिंग व्हिच कैन बॉदर माय माइंड। मेरे बॉदर करने से भी आंकड़ा रुकेगा नहीं, जो बढ़ना है वो बढ़ेगा। बट इट्स अराउंड 1.5 to 1.75। और सुनामी इट वाज ओनली फॉर 15-20 मिनट्स और 2.3 लाख लोग चले गए थे साहब उसमें। क्या 2004, आप में से बहुतों को तो शायद इसके बारे में डिटेल्स पता भी नहीं होगा। somebody who is at the age of 20-25, उसके लिए तो ये 15 साल पहले की बात है, तब तो 10 साल का रहा होगा, बहुत ज्यादा उसके बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन क्या रुक गई दुनिया, रुक गई मैनकाइंड, रुक गई हिंदुस्तान, रुक गया? नहीं साहब। ऐसा कहा जाता है कि कुदरत जब जब जहां जहां जितनी तकलीफें देती है तब तब वो जगह वहां के लोग ज्यादा तेजी से उभर करके आते हैं। we have the tendency of rubber ball। हमको जितना दबाती है उतने ही तेजी से हम उठ करके सामने आते हैं। तो बी रेस्ट अश्योर्ड, ये जितनी तकलीफ हम भुगत रहे हैं उतनी उस तकलीफ से हम उतने ही दुगने पावर के साथ में बाहर निकल करके आएंगे। एंड व्हेन आई से आई मीन इट, ये इतिहास ने प्रूव करके दिखा दिया है। What has changed since then? ये जो मैंने पिछले आपको आंकड़े दिए हैं उसके बाद से लेकर के क्या बदलाव हुआ है? हम 100 साल पहले का वो स्पेनिश फ्लू लेवे या उसके बाद से जितनी तकलीफ आती है हिंदुस्तान के अंदर में, पच्चू डैम फूटा था साहब आज से 40 साल पहले, 32 साल पहले तक की बात है, तब भी वही लगभग 15-20 हजार लोग मारे गए थे। तो ये सब तब से क्या बदलाव है? हेल्थ केयर बहुत चेंज हुआ है, ट्रेमेंडस एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर सिस्टम।
जिस लेवल की आजकल हमारे पास में रिसर्च और मेडिसिन और जिस लेवल की हेल्थ केयर है, उस लेवल की हेल्थ केयर उस समय नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय लोगों को लगा कि सबसे ज्यादा तवज्जो हेल्थ केयर को दिया जाना चाहिए, और दिया भी गया है। पर्सनल केयर सिस्टम्स के अंदर में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। पीपल नॉट वेरी accustomed टू टेक सो मच ऑफ पर्सनल केयर। जो जैसा होता था वैसा चलने देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में पर्सनल केयर के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मैं आपका फोकस इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। आई होप माय लैंग्वेज इज कंफर्टेबल टू एवरीबॉडी। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, जब भी कोई ऐसी तकलीफ आती है तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत बड़े लेवल पे चेंज आता है इसके अंदर। एक तो हेल्थ केयर का, इस लेवल के हॉस्पिटल्स, इस लेवल की हेल्थ की सुविधा है, इस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स, इस लेवल की टेक्नोलॉजी उसके अंदर में, हेल्थ के अंदर में, इस लेवल की रिसर्च, इस लेवल की मेडिकेशंस। हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है साहब, फ्रॉम 47-50 टू वी आर अराउंड 65-70-80। इस लेवल की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इसका मतलब हेल्थ केयर के अंदर बहुत काम हुआ है, पर्सनल केयर में काम हुआ, ओवरऑल हाइजीन के ऊपर में बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। अगर पिछले 5-10 साल के अंदर में तो इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है। मैं कहता हूं कि इतना बड़ा लॉकडाउन हमारे देश के अंदर में डाला गया है, और भी बहुत देशों में लॉकडाउन घोषित किया गया, लेकिन ऐसे बहुत कम देश है जिनके अंदर में लॉकडाउन इतना सीरियस लेवल पे डाला गया है। पीपल से दैट देयर इज लॉकडाउन इन सो मेनी कंट्रीज, बट जब मेरे कुछ परिचित वहां पर उनसे बात करता हूं तो कहते हैं कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई रूल या सिस्टम नहीं जिसके अंदर में हम किसी को रोक सके घर से बाहर निकलने के लिए। वी कैन ओनली रिक्वेस्ट बाय पुटिंग द लॉकडाउन, बट हमारे यहाँ फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जा रहा है, और अगर ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। बट ओवरऑल हाइजीन के ऊपर में इतना काम किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इतने अगर टॉयलेट से नहीं बने होते पिछले 4 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, तो ये लॉकडाउन इतना स्ट्रांगली पॉसिबल नहीं होता इंप्लीमेंट करना। यार, पीपल हैव टू गो टू द नेचर्स कॉल। घर के बाहर तो उनको निकलना ही पड़ेगा, और वो एक काम ऐसा है जिसके अंदर में when people used to go outside for the nature's call, they never go alone, they go in groups, क्योंकि जंगल में जाना पड़ता है हम लोगों को। पर अगर ये लॉकडाउन के पहले ये सब चीजें नहीं हो गई होती तो शायद ये लॉकडाउन का इतना इफेक्ट नहीं आता। तो ओवरऑल हाइजीन के ऊपर में बहुत काम किया गया, हर एक लेवल पे काम किया गया, एंटायर मैनकाइंड में। इंडिया में भी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इंडिया में हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर में इस पे काम किया गया। बट ओवरऑल हाइजीन हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली। टेक्नोलॉजी हैज गॉन माइल्स। मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर में जो बदलाव आया हुआ है, ये मैं नहीं समझता कि पिछले 200, 300, 400 सालों में जो बदलाव आया हुआ उससे ज्यादा बदलाव पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में आया हुआ है। तो what has changed since then is that technology has gone beyond anybody's imagination. और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी की डबल होने की स्पीड है। वो स्पीड पहले जो 25 साल में होता था वो 10 साल में हो गया, 10 साल में तो 5 साल में हो गया। अब हर 5 साल की चीज 2 साल में होने जा रही है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज है वो हो सकता है कि 1.5 साल के बाद में becomes absolutely obsolete। एकदम ऐसी नई चीज आ जाती है उसके अंदर में कि हमको लगता है कि इसका यूज कैसे करूं। एंड यू एंड मी आर विटनेस टू इट। हम लोगों के हाथ में जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एंड सिस्टम एंड लैपटॉप एंड कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 साल के अंदर में तो चीज खत्म हो जाती है साहब, जो नई चीज आ रही है उसके अंदर। एंड एवरीथिंग इट अप्लाइज टू एवरी डोमेन ऑफ योर एंड माय लाइफ। एंड वन मोर थिंग व्हिच हैज चेंज्ड अ लॉट इज एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है। मैं जब एजुकेशन के अंदर बदलाव कह रहा हूँ तो उसके हर एक दायरे की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर पहले के जमाने में एजुकेशन की पहुंच जहां तक थी उससे बहुत ज्यादा पहुंच हो गई है। आई मीन लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है, लोगों की अवेयरनेस टू एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, लोगों की इच्छा अच्छे लेवल का एजुकेशन लेने की बहुत बढ़ गई है। आई एम नॉट कमेंटिंग ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री हियर एट ऑल। मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट एंड वेरी डिबेटेबल सब्जेक्ट ऑल्सो। मैं सिर्फ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पे एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है। ये सब जो पिछले हादसे हुए हैं इंसानियत के साथ में, दुनिया में लोगों के साथ में, उसके बाद से लेकर के तो इतनी चीजें तो बदल गई है, बदली और भी बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, चेंज इज ओनली कांस्टेंट, और व्हाट इज नॉट चेंज इज द स्पिरिट ऑफ मैनकाइंड टू स्ट्रगल, सर्वाइव एंड ग्रो। मेरे और आपके पूर्वजों की जो स्ट्रगल करने की, सर्वाइव करने की और ग्रो करने की जो पोटेंशियल था और जो धगस थी, जो जुनून था, वो उसके अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं है। दैट स्टिल रिमेन्स एंड यू वेट एंड वॉच। व्हेन आई से यू वेट एंड वॉच, यू एक्चुअली वेट एंड वॉच की कितनी तेजी से हम लोग इसे सोच करके बाहर आते हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ सिर्फ आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत आपके साथ में बयां कर रहा हूँ।
हम में से हर किसी के घर में कोई ना कोई हादसा होता है, हम में से हर किसी के घर में कोई ना कोई पर्सनल लॉस भी होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, डिपेंडिंग कि कितना क्लोज था और कितना डिपेंडेंट थे उसके ऊपर में हम उनके लॉस को नोट करते हैं. बट हैज लाइफ स्टॉप? नो, लाइफ इज नॉट स्टॉप. व्हेन somebody of my personal circle goes away, life doesn't stop. Perhaps that is the biggest loss anybody can have. तो तब भी जिंदगी नहीं रुकती है, अब भी नहीं रुकेगी. कोरोना आया है, चला जाएगा. हम अपना काम करेंगे, जो हमसे कहा जा रहा है वो करेंगे काम, लेकिन ये आगे ये जाएगा और हम उसके बाद कुछ करके सामने आएंगे. हाउ वाज द बिजनेस बिफोर कोरोना? चलिए ना साहब, कोरोना के बाद बिजनेस कैसा होगा ये बताने के पहले कोरोना के पहले बिजनेस कैसा था उसको समझना बहुत जरूरी है. हालत खराब है साहब. अगर आप और हम बिजनेस के अंदर में हैं और आप और हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ में कनेक्टेड भी है, तो दिस इज अ कॉमन डायलॉग दैट यू एंड वी हैव बीन हियरिंग. हालत खराब है साहब. धंधे की हालत की तो बात ही मत करो. मतलब बाजार में ग्राहक ही नहीं है साहब, बाजार में पैसा ही नहीं है. जिसको माल दिया वो पैसा मांगने जाते तो पता था माल निकालने के, पैसा आया नहीं है साहब. एंड उधारी बढ़ते जा रही है, माल मिल नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. जिसको जहां मौका मिलता है वो ये बात रुक जाता है, हालत खराब है. जो आपने कहा था हो गया. हालत खराब है कहा था, हालत खराब हो गई. थिंक 10 times, 20 times and 100 times before we utter a single word. पर ठीक है, ये कहा जा रहा था कि हालत खराब है. कॉमन डायलॉग ऑफ अ बिजनेसमैन हर एक मार्केट में सुनने को मिलता था. बट विल यू बिलीव द बिजनेस इन इंडियन मार्केट स्टूड एट 17 to 20 लाख करोड़ पर मंथ. 17 से 20 लाख करोड़ पर मंथ का इंडिया में बिजनेस होता है साहब, पर मंथ का. और हम कह रहे हैं कि मार्केट खराब है. दिस विल अगेन कम बैक. आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, जब ये बिजनेस यहां तक था. ऑफ कोर्स कम ज्यादा उसके अंदर में होते रहता है, बट फरवरी मिड से लेकर के मार्च से लेकर के थोड़ा कम होते जा रहा था. और अब तो ऑलमोस्ट वी कैन से कि काफी हद तक वो स्टैंड स्टिल आ गया है. बट इट्स ओनली हॉल्टेड. इट्स गोइंग टू जंप बैक अगेन. दिस विल अगेन कम बैक. आएगा जरूर, लेकिन जब एक बार कोई चीज रुकती है वापस चलती है तो उसके अंदर में थोड़े से राइडर्स, थोड़े से ब्रेक्स लगते हैं, थोड़ी सी स्पीड कम होती है, थोड़ा सा उसका डाइवर्शन हो जाता है, थोड़ा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. क्या होगा ये मुझे और आपको अपने विजडम को यूज करना पड़ेगा, मुझे और आपको अपनी अलर्टनेस को यूज करना पड़ेगा समझने के लिए कि ये कैसा होगा. मार्केट इज फास्ट, व्हाई डू यू वरी? मुझे और आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, बिकॉज वरी डोंट टेक अस एनीवेयर. यस, माइंड योर प्लानिंग टेक्स मी. व्हाई टू वरी? मार्केट इज ओनली फास्ट, इट्स नॉट डेड. अभी जिसके घर में शादी होनी है, अभी शादी नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब? वो बंदा शादी नहीं करेगा क्या? अरे करेगा साहब, उसके बगैर कोई रहता नहीं है. वो इच्छा हो ना हो, लेकिन वो दौड़ के करता है उसके अंदर में. सो उसने शादी फिलहाल स्थगित किया. इट इज पॉज, स्लाइटली पोस्टपोन्ड, इट्स नॉट डेड. वो शादी नहीं करेगा ऐसा नहीं है. आज नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा. जिसकी शादी पिछले साल अप्रैल में, इस साल में अप्रैल होना तय हुई थी, पिछले अक्टूबर नवंबर में तय कर लिया था, अगले अप्रैल में शादी करेंगे. अप्रैल आ गया, अप्रैल चला गया, अप्रैल खत्म हो जाएगा साहब, अभी मई आ जाएगा. इसका क्या मतलब? शादी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, अभी शादी की सीजन में करेगा. सो डोंट वरी. किसी भी, मैंने शादी कहा, बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी, मेरे बहुत कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स चल रहे हैं जूम के ऊपर में, और अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ में बातचीत होती है. पीपल से कि साहब क्या करें साहब, हम तो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चला रहे हैं, नो सेलिब्रेशन. लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लोग पार्टीज नहीं कर रहे, लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं. हम क्या करें? तो एक ही जवाब है, बैठ जाइए और सोचिए कि आप क्या करते आ रहे थे. अब सोचिए कि जो करते आ रहे थे वो नहीं करेंगे, और ऐसा क्या था जो आप ऐसे फंक्शन में करना चाहते थे लेकिन आपके पास में टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि बैक टू बैक आप प्रोग्राम लेते रहते. यू आर डूइंग वंडरफुल एंड यू आर डूइंग बैक टू बैक प्रोग्राम. आपके पास में इनोवेट करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता था ये टाइम में. ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इनोवेशन डू यू वांट टू मेक, और वो इनोवेशन को पास. क्योंकि जिसका बर्थडे इस साल सेलिब्रेट नहीं करेगा तो बर्थडे आना खत्म हो जाएगा. नहीं खत्म होगा साहब. अभी अगर मान लीजिए मेरा बर्थडे गया है और मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो आई विल बी वेटिंग फॉर माय सन्स बर्थडे और माय वाइफ्स बर्थडे और समबडी एल्स इन माय फैमिलीज बर्थडे टू कम. तब मैं ये बर्थडे की कसर भी वहां निकाल दूंगा. बिल्कुल बिलीव यू, मैं निकाल दूंगा. शादी में अभी रुक गया हूं, मैं नवंबर में शादी करूंगा. जितने भी फंक्शंस अभी पोस्टपोन हुए हैं वो फंक्शंस आगे जाकर के होंगे. जो चले गए, जो नहीं हो पाएंगे, वो अगले साल घूम करके आएंगे. सो नथिंग इज डेड, इट्स ओनली पॉज. डिमांड इज सप्रेस्ड, इट्स नॉट फिनिश्ड. मेरे घर में कुछ चीजें लग रही थी, नॉर्मली लगती है मेरे घर के अंदर में. मान लीजिए मेरे घर के अंदर में एक ट्यूबलाइट खराब हो गई है, एक लाइट खराब हो गई है, वो बंद है, तो मैं आज जाकर के उसकी बहुत चिंता होकर के आई एम नॉट फैनेटिकली सर्चिंग इनटू द मार्केट, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान मिल जाए, आई वांट टू चेंज द लाइट ऑफ माय ड्राइंग रूम. नो, ठीक है ना, अभी बंद है ना,
अभी वैसे भी घर में कौन आ रहा है, हम ही 4 लोग हैं घर के अंदर में, तो ठीक है, सप्रेस कर दिया है डिमांड वो लाइट। लेकिन जिस दिन मार्केट खुलेगा और मुझे सही लगेगा, मैं जाकर के वो लाइट खरीदूंगा और मेरे घर के ड्राइंग रूम में वो लाइट को लगाऊंगा। डिमांड इज सप्रेस्ड, इट्स नॉट फिनिश्ड कि मैंने सोच लिया कि नहीं साहब अब ये कोरोना के दरमियान लाइट गई है तो अब इसको नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसा तो है नहीं। इट्स ओनली सप्रेस्ड, डोंट वरी। जो व्यक्ति आपकी दुकान से माल खरीदने के लिए नहीं आया हुआ है, और सरकार ने ये जो किया हुआ है कि ओनली एसेंशियल आइटम्स, क्योंकि वो आज चाहिए तो आज ही चाहिए साहब, आज भूख लगी है तो कल नहीं खा सकता उसके लिए, मुझे आज भूख लगी है तो मुझे आज ही पेट भरना पड़ेगा। लेकिन जिनकी दुकानें नहीं खुली हुई है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, दोस पीपल हु आर वरीड, स्टे कूल, वो व्यक्ति कल आएगा और आपसे लेकर के जाएगा। कस्टमर इज ओनली डरेला, ही इज नॉट मरेला। कस्टमर मर नहीं गया है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सहमा हुआ है, क्योंकि बार बार टीवी देखते रहता है। 15, 20, 25, 30 न्यूज चैनल है जो सुबह से शाम तक के सिर्फ और सिर्फ कोरोना ने क्या क्या हालत खराब कर दिया उसी की बात कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अदर देन कोरोना। तो कस्टमर वही जो कस्टमर है, और मैं और आप भी कस्टमर ही है, रोज सुबह से लेकर शाम तक टीवी देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर जगह सिर्फ कोरोना ही कोरोना आ रहा है। आई शुड थैंक गवर्नमेंट कि उन्होंने डीडी नेशनल के ऊपर में रामायण और महाभारत और ये सीरियल चालू कर दिया, तो कम से कम कुछ दिमाग जो है वो वहां से हटकर के यहाँ जा रहा है, जो इंसान को थोड़ा सा विजडम देता है। बट अदरवाइज कस्टमर इज ओनली डरेला, ही इज नॉट मरेला। सो डोंट वरी, स्टडी योर सराउंडिंग, keep talking to people. When I say keep talking to people, don't ask them आपको क्या लग रहा है कोरोना में क्या होने वाला है। आप उनसे पूछिए साहब क्या रह गया है, क्या करोगे, आपको क्या अच्छा लगेगा। आपकी जो भी बात होगी उनसे करने की, वो सब पोस्ट कोरोना को लेकर के उससे सवाल करते रहिए। Ask people whenever you, I don't mean to say go to somebody place, you can always make a call। तय कर लीजिए ना, रोज 5 लोगों को कॉल करना। मैं समझता हूँ उनमें से बहुत लोग करते भी होंगे। रोज 5 लोगों को कॉल करना, उनके वेयर अबाउट्स पूछना, उनको गुड विशेस देना, उनकी हेल्थ को लेकर के अपनी अच्छाई बता देना कि हम भी ठीक है, अपने घर के बारे में बता दीजिए और पूछिए साहब आपको क्या लगता है कि हम और क्या कर सकते हैं, इंसान ने क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए। दे विल टेल यू। No book in this world can give you the right direction how you should move ahead after the corona, except the people who are surrounded, whom you are surrounded with। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद उनको क्या चाहिए, और जो उनको चाहिए वो आप दीजिए। एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग नाउ, उनकी सोच कितनी बदली है, उनका डायरेक्शन क्या चेंज हुआ है, वो कहाँ जाते थे पहले, अब कहाँ जाना चाहेंगे, ये सोचिए और उस तरीके का बदलाव आपके व्यवसाय में लाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। पॉज है, डेड नहीं है, सप्रेस्ड है, फिनिश नहीं है, डरेला है, मरेला नहीं है। लोगों से बात करते रहिए, अपना दिमाग, अपने कान, अपनी आंख, अपना सब खुला रखिए, एंड लेट द इनपुट्स गेट इनटू इट। कस्टमर बिहेवियर पोस्ट कोरोना। अब मैंने आपसे कहा कि लोगों से बात करते रहिए। व्हेन यू टॉक टू पीपल यू कम टू नो कि व्हाट डू दे वांट, एक्चुअली वो क्या चाहते हैं समझ में आएगा। तो ये तो कुछ लोगों से बात किया है जो मैंने अब तक के वो चीजों को मैंने सामने लाने की कोशिश किया है कि मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना कस्टमर का बिहेवियर ऐसा रहेगा। When I say post corona, I'm talking about immediate 4, 5 months, 6 months. I'm not talking about 2 years or 3 years right now. We'll go to the safe and the reputed outlet only, जहां उसको समझ में आएगा कि हमारे आउटलेट पे सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, हमारे आउटलेट पे सैनिटाइजेशन होकर के ही चीजें आती है, हमारे आउटलेट पे जो भी आता है उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जाता है, वही व्यक्ति हमारे यहाँ आता है। वैसी जगह लोग जाना पसंद करेंगे अगर उनको जाने का काम होता है। तो ये मेरा कस्टमर का बिहेवियर नंबर 1 जो मुझे दिखता है कि ये होगा। Will go to safe and reputed outlets only. They won't go to the place where you find lot of people. क्योंकि अभी ये जो न्यूज आती जा रही है उसके अंदर बता रहे हैं कि सब ऐसे ही फैल रहा है। Will still maintain the safe distance. मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपके और मेरे जैसे समझदार है। I'm not talking about people who still don't understand कि what is the importance of social distancing or keeping the safe distance. अभी भी बहुत लोग आपको मार्केट में नजर आएंगे who hardly care, मुझे कुछ नहीं होता। See, it will not ask you। वो ये बात है ना, किसी घर में कुत्ता रहता है और आप गए और आप डर रहे कुत्ते से, कुत्ता नहीं साहब ये कुत्ता काटता नहीं है, आज तक किसी को काटा नहीं। मेरा सवाल उनको सिंपल सवाल रहता है, क्या काटने के पहले पूछता है आपको कि सर इसको काटू कि नहीं काटू? नहीं ना। तो कोरोना भी आपको मुझे पूछेगा नहीं कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। सो विल स्टिल मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई होगी हमको और आपको कि एकदम से कोई हमारे आसपास आ जाएगा तो हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। So they will go to safe and reputed outlet. They will still maintain the safe distance. Will go for only necessary items. अभी भी
मेरे घर की लाइट खराब हुई है तो मैं पहले जाकर के लाइट चेंज करूंगा। अभी तुरंत मैं 2 महीने के अंदर में मेरे घर को चलो पेंट करा लेता हूँ पूरे घर को अंदर में, और 4 मतलब फर्नीचर का काम सोचा था 1 साल पहले की कराना है, अभी फर्नीचर का काम करा लेता हूँ, अभी नहीं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। क्योंकि डीप इनसाइड आई एम हर्ट एज अ बिजनेसमैन, आई एम हर्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मेरा चलता हुआ काम रुक गया है, मेरी साइकिल का चक्का जो घूम रहा था वो रुक गया है। सो जब तक कि वो प्रॉपर रोलिंग नहीं हो जाएगा, मैं अननेसेसरी आइटम्स के ऊपर में एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो तय कर लीजिए, एम आई डीलिंग इन समथिंग विच इज नेसेसरी और एम आई डीलिंग इन समथिंग विच इज लग्जरी। नेसेसरी हैज बिकम द न्यू लग्जरी नाउ। उतना ही मैंने कर लिया तो बहुत है। और अगर आप कोई ऐसी चीज को लेकर के सोच रहे हैं या कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा लग्जरी है, तो आई विल से थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू जंप इनटू इट। ओनली थिंक ऑफ समथिंग व्हिच इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी कोरोना लॉकडाउन में जो एसेंशियल्स है, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो एसेंशियल्स का जो दायरा है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, नेसेसरी आइटम्स का दायरा और बढ़ जाएगा। क्या मेरी आइटम्स, क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा व्यापार उन दायरों के अंदर बैठता है कि मुझे आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ आने वाले कुछ समय तक तो इंसान सिर्फ नेसेसरी आइटम्स के ऊपर भी जाएगा, बिकम प्राइस कॉन्शियस। क्योंकि हम और आप समझदार है साहब, हमने और आपने अपने अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। वी हैव इंश्योर्ड दैट they don't feel the pinch of this lockdown। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर अगला जो आएगा वो प्राइस कॉन्शियस आएगा। अगर बहुत हाई प्राइस चीज रखी हुई है तो 2 बार सोचेगा, लूं कि नहीं लूं, unless and until it is necessary for him, like it's a medication। डॉक्टर ने बताया है तो प्रॉब्लम है तो अपनी तबीयत को और खराब होने की बजाय वो महंगी चीज पे चला जाएगा। अदरवाइज he'll be price conscious। Be little careful। Personal lockdown will still persist in his mind। वो बेवजह शाम को घूमने नहीं निकलेगा। संडे के दिन बैठ गए गाड़ी के अंदर में और ऐसे ही राउंड लगाने चल दिए साहब अपने शहर के अंदर में, चलो ना घूम के आते हैं, चलो वो चौपाटी बनी हुई है वहां चले जाते हैं, चलो वो ईटिंग जॉइंट है हमारा, हैपनिंग स्ट्रीट है वहां चले जाते हैं। ऐसा फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में लॉकडाउन इतना जो 30 दिन 40 दिन का 50 दिन का लॉकडाउन जो दिमाग में घुसेगा वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अभी भी वो बिल्कुल अपने बाजू में जो अनजान व्यक्ति आएगा उसको बड़ी बड़ी शक की निगाह से देखेगा। लुक एट द आई ऑफ सस्पिशन कि कहीं ये कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो लॉकडाउन विल स्टिल परसिस्ट इन द माइंड। डिजिटल एंड ऑनलाइन विल ग्रो। पीपल विल हैव गॉट अकस्टम्ड और अकस्टम हो जाएंगे। वैसे ही जो हमारा व्यापार था वो ऑनलाइन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित था। खैर वो उनकी बेवजह चिंता थी, क्योंकि अभी तक के आंकड़े बताते कि इंडिया के अंदर में ऑनलाइन बिजनेस इज हार्डली 3%। हार्डली 3%। अभी भी 97% जो है वो ऑफलाइन ब्रिक एंड मोर्टार में बिजनेस होता है। बट ये जो है 3% मैं समझता हूँ इसके अंदर में थोड़ा सा इजाफा और हो जाएगा, क्योंकि इंसान अपने घर में घर की सुविधा में बैठ करके चीजें लेना पसंद करेगा। क्योंकि उसको एक चीज लगेगी, बाहर जाकर के लेने की बजाय मैं घर पे बुलाता हूं तो संभावना या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स अभी हमने दिल्ली में पढ़ा था कि दिल्ली में किसी एक व्यक्ति ने फूड डिलीवरी किया, किसी एक फूड डिलीवरी एजेंसी के बंदे को कोरोना था, तो वो अब बहुत सारे घर क्वारंटाइन में आ गए। दो रेयर केसेस, हम उसकी भी केयर करके ले सकते हैं, लेकिन पीपल विल प्रेफर वर्किंग डिजिटली ऑनलाइन एंड डूइंग इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम रादर देन गोइंग टू द क्राउडेड प्लेसेस। तो ये कस्टमर का बिहेवियर रहेगा पोस्ट कोरोना। मुझे अपने बिजनेस को इसके अंदर में फिट करना पड़ेगा साहब। मेरे आउटलेट के बाहर जहां मैं काम कर रहा हूं वहां एक बड़ा बोर्ड लग जाता है, क्या वी आर प्योरली सैनिटाइज्ड प्रेमाइसेस। सी हाउ कस्टमर ट्राई टू। वो थोड़ा सा अच्छा भी फील करेगा जब वो आपके अंदर एंटर करेगा। आप और मैं आज भी किसी स्टोर के अंदर में जाते हैं और गेट पर खड़े रह करके एक व्यक्ति अगर आपको थर्मल स्कैन करता है, दूसरा व्यक्ति आपके हाथ में सैनिटाइजर डालता है, तो दूसरी बार कोई एसेंशियल चीज देना जाते हैं तो उसी आउटलेट पे जाते हैं, बजाय इस पे कि कोई ऑर्डिनरी दुकान पे चले जाना। क्योंकि हमको लगता है कि वहां थोड़ा सा व्यवस्थित हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, इसका मतलब सबके साथ हो रहा है, तो आई बिकम लिटिल कंफर्टेबल। वेयर इज द अपॉर्चुनिटी नाउ? कस्टमर का बिहेवियर पोस्ट कोरोना क्या होगा बता दिया मैंने आपको, आपके साथ शेयर किया। अब अपॉर्चुनिटी मुझे कहां दिखती है? अगेन जैसे पिछले प्रॉब्लम से अब तक के चेंज हुआ था, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इज अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। Healthcare, when I say, when whatever thing that you are into which makes somebody feel that this is taking care of my health is a big industry now. Sanitation को लेकर के, अरे ये sanitation को लेकर के तो पिछले
30 दिन के अंदर में इतने लोगों ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है और इतने ब्रांड्स के सैनिटाइजर आ गए. I was searching for Dettol in the market since last 3-4 days and I could not find Dettol anywhere in the market. I've not searched less than 20 outlets. उसमें बहुत सारे मेडिकल वाले तो मेरे पहचान के हैं. They are close to me. Said सर Dettol है ही नहीं. but Dettol नहीं है तो क्या हुआ? उनका कहना है Dettol नहीं है तो क्या हुआ? सर Dettol के जैसे कम से कम 10 ब्रांड मार्केट के अंदर में आ गए and everybody is equally good. डेटॉल जितना नाम नहीं है लेकिन ये सडनली आ गया मार्केट के अंदर. सैनिटेशन को इतना बड़ा आज की तारीख में ये डोमेन आ गया है. यू एंड वी कैन ट्राई समथिंग वेरी बिग इन द सैनिटेशन. एनहांस्ड ऑनलाइन एक्सपीरियंस. मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात किया कि अब लोग ऑनलाइन परचेज की तरफ और ज्यादा झुकाव आएगा. व्हेन आई से ऑनलाइन परचेज इट डजंट ओनली मीन कि Amazon या Flipkart. किसी भी तरीके का अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, आपको ऑनलाइन स्टडी करना चाहेंगे, तो जितना स्ट्रांग अपने आप को आप ऑनलाइन में ला सकते हो, जितना स्ट्रांग आप अपने आप को ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंस को फेल करा सकते हो, यू विल गेट दैट बेनिफिट ऑफ गेटिंग मोर कस्टमर्स. ये बात आप ध्यान रखिए. ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्किंग. अब रिमोट वर्किंग तो आज हमने वर्क फ्रॉम होम का पावर अब देख लिया. हालांकि वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू. जो टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड के लोग हैं उनमें वर्क फ्रॉम होम का तो बहुत सालों से कॉन्सेप्ट चल ही रहा है. बट अब ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये टेक्नोलॉजी और आईटी से निकल करके बहुत सारे डोमेन में आ गया है. सो मेनी इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड बिलीव यू मी सो मेनी ऑफ देम आर गेटिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट. अरे एक व्यक्ति को रोज ऑफिस बुलाना, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पर्क्स देना, यहाँ करके जो काम करता है मैं समझता हूँ उससे भले थोड़ा कम करे लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस में कट हो जाता है. तो हम अपने रेगुलर ऑफिस के वर्कफोर्स को कम करके कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी आगे मिलेगी. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क. तो रिमोट वर्क के लिए टूल्स लाना पड़ेगा ना. आज हम लोग जो भी जिस टूल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस टूल को हम यूज कर रहे हैं, ये टूल भी ऐसे ही है. तो ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमोट वर्किंग के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, इफ यू कैन मेक समबडी गेट द बेनिफिट ऑफ वर्चुअली एक्सपीरियंसिंग योर आउटलेट, नथिंग लाइक इट. उसको आपके आउटलेट पे आने की जगह उसका आउटलेट आप वर्चुअली फील करवा सकते हो, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम होने वाला है आगे जाकर के, क्योंकि एंटायर कम्युनिटी, द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, एंटायर ह्यूमैनिटी हैज सीन द बेनिफिट हाउ नेचर हैज हील्ड इटसेल्फ इन 30-40 डेज. पिछले 30-40 दिनों के अंदर में कुदरत ने अपने आप को कितना तेजी से रिपेयर किया हुआ है. तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ इन चीजों के ऊपर में अगर इतने लेवल का भी ध्यान रख दिया तो हम बहुत ज्यादा लेवल पे कुदरत को संभाल सकते हैं, एनवायरनमेंट को, वातावरण को बचा सकते हैं. अब तक तो प्रॉब्लम ही था साहब, हम में से हर कोई चाहता था कि वातावरण अच्छा हो, लेकिन हमको लगता था कि मेरे नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा. अब समझ में आ गया कि मेरे गाड़ी नहीं चलाने से मेरे आसपास के वातावरण में कितना बदलाव आता है. ये हर कुछ समझ में आ गया, हर किसी को. तो ये हर किसी का लेकर के क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकल करके आया है सामने. सो नाउ इसी लाइन के ऊपर भी बहुत सारे काम होने लगेंगे. क्या मैं और आप अपनी सोच को इसके साथ अलाइन कर सकते हैं? एनवायरनमेंट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ. वर्किंग समथिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. You and me have been reading so much. You and me have been listening so much here and there, and reading over WhatsApp, reading newspaper, reading articles here and there. कि चाइना के जो बिहेवियर रहा हुआ है पिछले 4 महीनों के अंदर में, उसको लेकर के एंटायर वर्ल्ड इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद चाइना. एंड यू एंड मी very strongly know कि चाइना was the hub of entire manufacturing industry of the world. मैक्सिमम परसेंटेज शेयर जो था वो चाइना के पास में था, चाहे वो खिलौने से लेकर के हो या बिग मशीनरी तक के हो. मैक्सिमम थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड इन चाइना. हम लोगों के दिवाली के दिए और दिवाली के लैम्प शेड्स जो थे, लाइट शेड्स जो थे, वो भी चाइना से बन के आते थे. उसके ऊपर में शुभ लाभ लिख करके आता था और जय महालक्ष्मी के फोटो बन करके आते थे. ये चीजें धीरे धीरे चाइना से हट करके बाकी जगह जाना शुरू हो जाएगी. ऑफ कोर्स इंडिया की चीजें इंडिया में आएगी. यूएस एंड जापान हैव ऑलरेडी इशूड द नोटिस ऑफ दिस काइंड. उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज जो थी उनको वापस आने के लिए इंसेंटिव्स पैकेज देना शुरू कर दिया है. They can go back to their own country or they can shift their base from China. See, I am not an authority to say anything कि चाइना से इतने इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी. बट हम ये तो सोच सकते हैं कि कुछ भी अगर शिफ्ट होकर के परकुलेट होकर के इंडिया में आता है तो am I ready? मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान तैयार है क्या, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ तो क्या मैं तैयार हूँ. When I say manufacturing, it does not always mean that you need to have a 10 crore big industry unit set up. No.
अब जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा तो दिस विल बिकम अ कॉटेज इंडस्ट्री लाइन ऑल्सो। मैं मेरे घर में बैठ करके 4 मशीन लगा करके बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। अगर मैंने क्वालिटी लेवल पे वर्ल्ड को इंप्रेस करना शुरू कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिग बूम वी आर एक्सपेक्टिंग इन अनदर 4-5 years होगा साहब। आपको और मुझे इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी आज ही तलाश कर लेना चाहिए। सो ये 4-5 क्षेत्र के अंदर में अपॉर्चुनिटीज है, और भी बहुत सारी जगह होगी, लेकिन ये चीजें दिस इज समथिंग दैट आई कुड इजीली फिगर आउट बेस्ड ऑन द डिस्कशंस एंड द रीडिंग दैट आई हैव डन ओवर दिस 40 days और सो। हाउ शुड माय बिजनेस बिहेव? मैं जो भी काम कर रहा हूं या काम करने की सोच रहा हूं वो कैसे बिहेव करना चाहिए? कस्टमर का बिहेवियर देख लिया, अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है, अब मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सैनिटाइजर्स के अंदर में 1 महीने के अंदर में इतने लोग खुल करके आ गए, लेकिन दिक्कत ये है कि एवरीबॉडी इज मेकिंग द सिमिलर थिंग। मतलब मैं ये लूं कि ये लूं कि ये लूं, जो दिख गया वो ले लिया, लेकिन कोई मुझे ही मांगता हुआ कब आएगा? जो मैं काम करने वाला हूं उसी की डिमांड लेकर के कस्टमर कब आएगा? जब मैं बाकी लोगों से हट करके अपने आप को पेश करने की कोशिश करूंगा। और जब मैं बाकी लोगों से हट करके अपने आप को पेश करने की कोशिश करूंगा, कहता हूं तो आई नीड टू बी डिफरेंट in my quality, in my standards, in the value that I offer, in the price that I offer, in the position that I have created in my market, in the way customer feels. ये सारी चीजों के अंदर में मैं अपने आप को लोगों से डिफरेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं आने वाले समय में अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता हूं। नहीं तो जैसा पूरी दुनिया जाएगी वैसी जाएगी हम भी। वो तो लोकल ट्रेन के अंदर में धक्का लगता है तो आप अंदर भी चले जाते हो, धक्का लगता है तो आप बाहर भी आ जाते हो। बट अगर आपको अपनी जगह बनाना है तो आपको एक अलग कोच की, अलग बोगी की टिकट लेना पड़ेगा, जहां पर लोग नहीं चढ़ते हैं इतने, जहां चुनिंदा लोग ही चढ़ते हैं। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट यू नीड टू नो दैट यू वांट टू बी वन, यू नीड टू बी डिफरेंट। यू वांट टू बी मेनी, यू कैन बी मेनी। टेक्नोलॉजी द की। हमने इसके पहले भी 2 बार इसके बारे में बात किया। टेक्नोलॉजी वैसे पिछले सालों से भी उठ करके बहुत तेजी से आई हुई है, अभी भी आएगी उसके अंदर में। पर अब मैं मेरे बिजनेस के अंदर में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर सकता हूं साहब? आई फील दैट आई माई सेल्फ काउंट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मेरी नजर के सामने आता है सब। आई एम अ पर्सन who is not very closely connected to technology, and over past 20 years I have been doing programs where technology played the least role. But अब पिछले 1 महीने के अंदर में I am constantly stuck up to my system, day in and day out. दिन में 3-3 प्रोग्राम होते हैं और रात में बैठ करके उनकी तैयारियां होती है। सारे सिस्टम के साथ में अलग अलग चीजों को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, उसको सीखने की कोशिश करना चालू कर दिया है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर में, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर में टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आप तय करना पड़ेगा साहब। आर यू यूजिंग द सॉफ्टवेयर दैट आर गिविंग यू इनफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रन योर बिजनेस? Are you using the software which is making your people come together on a virtual platform or a digital platform where you can divide the work instead of coming together? आप जिस जगह काम कर रहे हो, आपके लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आपके लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, और जब इकट्ठे होंगे तब हम हफ्ते में 1 बार मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों को काम छोड़ के आना पड़ता है। अभी यूजिंग द प्लेटफॉर्म लाइक ट्रेलो और असाना, जो भी है जिसके अंदर हम वर्क डिवाइड कर लेते हैं। ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे और आपको सोचना पड़ेगा। हम और आप जूम का इस्तेमाल कर ही रहे साहब, किसको आवश्यकता है एक साथ मिलने की साहब? जितने लोग आज मेरे साथ में उपस्थित है इस वेबिनार के अंदर में, आप में से बहुत लोगों ने इसके पहले लेमन में आकर के हमारे साथ में बहुत सारे सेशंस में शरीक हुए हैं। कहाँ जरूरत है उसकी साहब? वी आर सिटिंग एट आवर ओन कंफर्ट। मैं अपने कंफर्ट में बैठा हूँ, आप अपने कंफर्ट में बैठे हैं, एंड दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन अस इनफ कंफर्ट टू डू आवर प्रोग्राम, मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे और आपके प्रोग्राम्स के अंदर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम कर रही है। अभी मेरे और आपके बिजनेस के अंदर में टेक्नोलॉजी अब तक तो इंपॉर्टेंट काम कर ही रही थी, लेकिन अब और उसका रोल बढ़ जाता है। कितना ज्यादा इफेक्टिवली मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर कितने स्ट्रांग है, मेरा कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है, क्या मेरे सॉफ्टवेयर कस्टमर को ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या मेरे पास में सिस्टम जहां मैं कस्टमर को ट्रैक कर रहा हूँ, कस्टमर का डेटाबेस तैयार हो रहा है क्या, कस्टमर के एनालिटिक्स तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। वैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर में अगला हमारा वेबिनार है ही, एंड वो वेबिनार जो आने वाला है, वो वेबिनार आई थिंक अनदर नेक्स्ट 3-4 डेज वो वेबिनार होने वाला है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आई हैड दैट स्लाइड समवेयर, आई थिंक इट विल कम लेटर ऑन। विशाल चावड़ा का वेबिनार है 23rd को, आई थिंक वो वेबिनार है, ठीक 11 बजे, तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में। मैन पावर प्लानिंग मुझे और आपको करना पड़ेगा साहब। हमने बात किया कि टेक्नोलॉजी चाहिए, हमने बात किया नीड टू बी डिफरेंट, हम ये भी बात करेंगे कि मैन पावर की प्लानिंग करना चाहिए। देखिए साहब, एक बात तो तय है,
that every business in today's time has got a big jolt. एक बहुत जबरदस्त मुक्का पड़ा हुआ है और हर कोई इस मुक्के के दर्द से कराहत हो रहा है. अब आने वाले समय में the best thing that you and me can do is try to make the optimum use of things that I have. मेरे पास में मेरे बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा एनालिस्ट है क्या? ऐसे किसी को नहीं बोल सकता कि थोड़ा सा यार ये सब चीजों को स्टडी करके मुझे बता दे, मार्केट की ये इन्फॉर्मेशन निकाल करके जो अभी मेरा मार्केट में जाके बंदा काम कर रहा है उसी को बोल दूंगा ये काम करने नहीं चलेगा साहब. आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ समबडी हु इज एक्सपर्ट इनटू इट. आई एम नॉट सेइंग रिक्रूट न्यू पर्सन्स. इस समय में टीम को बड़ा करने की बात तो बेवकूफी है, बिल्कुल नहीं करना फिलहाल टीम को बड़ा. अभी जब मुझे लगता है कि टीम काम नहीं कर पा रही है, काम इतना बढ़ गया है, तब मैं टीम को बड़ा करूंगा. लेकिन अभी तो जो टीम है उसी के साथ में रस करूंगा. लेकिन अगर ये टीम में सक्षम लोग नहीं है तो आई नीड टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हाउ डू आई आउटसोर्स द थिंग. बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा एनालिस्ट होना चाहिए मेरे पास में. सोशल मीडिया मार्केटिंग होना चाहिए. आई हैव सीन सो मेनी पीपल. मैं इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं तो बस उसी को बोल दूंगा, वो 2 पोस्ट डाल दिया करेगा. सोशल प्लेटफॉर्म पे पर्सनल लेवल की पोस्ट डालना और सोशल मीडिया को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करना आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये 2 चीज के अंदर में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यूज दैट पर्सन हु हैज गॉट लिटिल इनसाइट और मे बी एक्सपर्टाइज इनटू हाउ यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ स्ट्रांगली इन सोशल मीडिया. वो अगर आपके पास नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी को हायर कीजिए, लेकिन वहां पैसा खर्च कीजिए. वो आज की तारीख में आवश्यकता है. सीआरएम एनालिस्ट. आपके सॉफ्टवेयर, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूं जो सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं लेकिन उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ बिलिंग के लिए होता है. ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर से आपको रेगुलर डेटा निकल करके आना चालू हो जाए. जो डेटा आप स्टडी कर सको, वो डेटा का स्टडी करके आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर के आने वाला कोई चाहिए साहब. कौन सा कस्टमर कब आता है, कितने दिन में उसकी साइकिल कंप्लीट होती है, वो कस्टमर ने किन चीजों को छुआ था, क्या चीज को अच्छी लगती है, क्या वो नहीं लेता है. ये सारा, अगर मुझे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंदर से निकलता है. लेकिन वो ढूंढने वाला व्यक्ति चाहिए. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी व्यक्ति की सहायता लीजिए या बचे हुए 15-20 दिन के अंदर इसको सीखिए कि इसको कैसे किया जा सकता है. और अगर मैं सोच रहा हूं कि कुछ नया करना है तो मैंने ऐसे चीजों को तैयार करना है जहां मैं लोगों की इसके लिए मदद कर सकूं. Believe you me, otherwise consultancy is going to take again a big hit for another 4, 5, 6 months. लेकिन अगर मैं इन चीजों की कंसल्टेंसी दे रहा हूं तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे. अदरवाइज जिसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिखने वाला है, लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे. मैंने उसको सीआरएम एनालिस्ट के रूप में काम करके मैंने उसको उसका एनालिटिक्स निकाल करके दे दिया, बंदा खुश हो जाएगा. मैंने उसको बिजनेस इंटेलिजेंस का स्टडी करके, उसका डेटा स्टडी करके उसको इंफॉर्मेशन निकाल के दिया, वो खुश हो जाएगा. नेक्स्ट वेबिनार, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बाय विशाल चावड़ा, फाउंडर सीईओ फ्लाइंग पेंगुइन्स. ये थर्सडे को 23 तारीख को 11 बजे से. सो प्लीज बी विद अस देयर आल्सो. मैं आपके सामने बात करूंगा बी लाइक. अभी हमने आपके सामने जो बात की, बी लाइक कम इन बम. एकदम कम में बम बनना है साहब. बहुत बड़ी टीम बना करके बहुत बड़ा काम करने की बजाय कम टीम में ज्यादा बड़ा काम करने की कोशिश करो. स्मॉल टीम्स, कीप योर टीम स्मॉल, कीप योर टीम स्मॉल. अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपने अब तक पकड़ के रखा हुआ है, आपकी टीम में 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग भी है, लेकिन एक व्यक्ति नॉन प्रोडक्टिव है, तो लीव दैट पर्सन इफ इट इज नॉन प्रोडक्टिव. इस टफ टाइम में नहीं, टफ टाइम खत्म होने के बाद. और गिविंग द अल्टीमेटम दैट यू टू शो योर प्रोडक्टिविटी इन 1 मंथ. मिनिमल रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स के अंदर में हम क्या कर सकते हैं साहब. Gone are the days when somebody would look at your lavish office and then get impressed. आज की तारीख में आपके सिर्फ आप जो वैल्यू दे रहे उससे इंप्रेस होगा. आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके इंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा ये व्यक्ति फालतू खर्च कर रहा है इसके अंदर में, बिकॉज ही हैज गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज फालतू एंड व्हाट इज काम. आई एम नॉट सेइंग मेकिंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ फालतू खर्चा, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में आने वाले साल 2 साल के लिए यस इट कैन बी टर्म्ड एज फालतू. अगर उसके बगैर काम हो सकता है तो आप कीजिए. ट्राई टू मेक योर बिजनेस सर्वाइव इन मिनिमल रिसोर्सेज. फ्रूगल अप्रोच लेकर के चलिए साहब. फ्रूगल अप्रोच. आपके ऑफिस के अंदर में पेपर कितने वेस्ट होते हैं इसको स्टडी कीजिए खाली उसके अंदर में.
और उसको स्टडी करके वो पेपर को जो एक साइड किया हुआ उसको सेकंड साइड यूज कीजिए। आई सीन दिस हैपनिंग इन माय ऑफिस, मैंने इसका काम किया हुआ। कोई भी चीज फेंक देना, एक पेपर में से पिन निकाला और फेंक दिया, वो पिन प्रॉपर जगह पे जाती है तो सेकंड टाइम यूज हो सकती है। आपको पता है एक पिन से क्या होने वाला है? वो एक पिन, वो एक पिन, वो एक पिन, वो एक पिन करके 6 महीने में पिन का डब्बा बनता है साहब। 6 महीने पिन का डब्बा होता है, वो पिन का डब्बा 200 रुपए का आता है। तो 6 महीने में 200 रुपए। ट्राई टू डू फ्रूगल अप्रोच। घर के अंदर में टूथपेस्ट जब खत्म होकर के आप डस्टबिन में डालते हो, सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए कि उस टूथपेस्ट के ऊपर में पुराना टूथब्रश घस के देखिए, कम से कम 3 दिन 4 दिन का टूथपेस्ट निकलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कंजूस बन जाइए, लेकिन आपने डस्टबिन में डाल दिया, वो किसी के काम आने वाला है क्या? नहीं, वो फेंकने में जाएगा। यूज इट सर। इस अप्रोच को अपने बिजनेस में लेकर के आइए, घस के निकाल करके देखिए कितना माल उसके अंदर से निकलता है। यूज अ फ्रूगल अप्रोच। कम में बम करने की कोशिश कीजिए। बी मोर कस्टमर सेंट्रिक। आपकी हर एक एक्शन जो है वो आपके कस्टमर की इर्द गिर्द होनी चाहिए थी। गॉन आर योर दोस डेज व्हेन वी यूज्ड टू क्रिएट अ बिजनेस सेंट्रिक अप्रोच। अब है आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मैं तो साहब ये ला करके बेचता हूं क्योंकि मुझे ये अच्छा है, आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी, लेकिन कस्टमर ये नहीं मांग रहा है, इसको छोड़, कस्टमर क्या मांग रहा है वो ला करके दे। ये सोचना काम मुझे आपके साथ करना पड़ेगा साहब। कम में बम करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट अप्लाई दिस अप्रोच फॉर नेक्स्ट 6 months और 1 year। आई एम सेइंग उसके बाद आपको लगता है कि इसका फायदा नहीं है, आई नीड टू गो बैक टू माय ओरिजिनल स्टाइल, नोबडी स्टॉप्स यू। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसका बेनिफिट लेना चालू कर दिया तो हम बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। देखिए कुछ सेगमेंट ऐसा होगा जो ये लॉकडाउन में जितनी तकलीफें हुई है उस तकलीफ से एकदम रिबाउंड होकर के बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वहां से जब रिबाउंड होकर के बाहर निकलेगा तो नए प्रॉब्लम में फंस जाएगा। यहां जो हमको आदत हुई है कम में जीने की, उस कम में जीने की आदत को अपने बिजनेस में लेकर के आइए और ये मान करके चलिए कि कस्टमर भी कम में जीने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी वही दीजिए जो उसको चाहिए, लेकिन जो दे रहे हैं उसके अंदर में उसको डबल वैल्यू दीजिए। मैं समझता हूं आपके नेटवर्क को यूज करने का टाइम अब आ गया है। योर नेटवर्क विल बिकम योर नेटवर्थ आने वाले समय के अंदर। ये स्लोगन को समझ के चलिए साहब। योर नेटवर्क इज गोइंग टू बिकम योर नेटवर्थ। और कम से कम भी चलने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं if you are able to do these things, nobody can stop you. Tough times will never last. Tough people do so. ये रॉबर्ट शूलर की बुक है, आप में से बहुत लोगों ने बुक को पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरा सजेशन है कि इसको पढ़िए। हर एक भाषा में ये अवेलेबल है। लेकिन ये जो इसका जो स्लोगन है, इसका जो टाइटल है, दैट इज इम्प्रेस्ड मी अलॉन्ग दैट टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू सो। ये समय है, ये चला जाएगा, लेकिन आप और मैं जिस मजबूती के साथ अपने राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, वो अगर खड़े रहे उतना, और ये लॉकडाउन की पीरियड को हम अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए, नए बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें अगर उसके अंदर से मैंने इंप्लीमेंट जो सजेस्ट किया उसको इंप्लीमेंट कर सके तो मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको वापस उतने ही स्ट्रांगली, उतने ही पावरफुली, उतने ही अच्छे तरीके से आने से कोई नहीं रोक सकता साहब। डू व्हाटएवर बेस्ट इज रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई योर कस्टमर एंड I guarantee you and me will emerge as a winner. Business after Corona will always be the way I make it. Any questions? Thank you very much for being with me throughout the program. और 45 मिनट का समय मुझे दिया गया था। टाइमर के हिसाब से मेरे 45 मिनट पूरे होते हैं। और आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आपके सवाल सादर आमंत्रित है। मैंने आपके साथ में जो बात किया कि हिंदुस्तान के अंदर में और दुनिया के अंदर में तकलीफें पहले भी आई थी, ये तकलीफ तो फिर भी बहुत छोटी है। सिर्फ दर्द इतना है कि ये दिख नहीं रही है, बाकी कुछ तकलीफें दिखी थी, लेकिन ऐसी तकलीफें भी आई हुई है। अभी हम लोग बहुत तेजी से उठ करके बाहर आएंगे। जब भी किसी को दबाया गया है तो वो उतने ही पावरफुली बाहर आया हुआ है। और हमने हमेशा देखा हुआ है कि कुदरत जहां बाहर लेकर के आती है उसके बाद वहां की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। हम भी उतने ही फर्टाइल होकर के बाहर निकलेंगे और अच्छा काम करेंगे। कुछ चीजें मैंने आपको सजेशन के रूप में दिया हुआ है, इनको अपने तरीके से आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हम लोग लेवल में इस तरीके की बातचीत आपके साथ समय समय पर करते रहते हैं, करते भी रहेंगे। टेक्नोलॉजी को लेकर के आपके साथ और डिटेल में वेबिनार होने वाला है। दिस वाज ऑल आई वांट टू से टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Over to moderator Krish. Yes, sir. Sorry to interrupt you, but I have a lot of questions that I received in my private chat box and
and in public chat box also. So I've compiled them all. मेरे पास तकरीबन 30-32 questions आए थे, पूरे 32 questions. I've compiled them all और मैंने वो 6-7 questions में tried to jot it down. But we have it's already 12, so I would request you to spare 15 minutes more so that we Okay, ठीक है, fine. Request them to please stay there for 15 minutes so that we can quickly cover this Q&A session, right? So sir, इसमें पहला जो question है that is कि जो काफी लोगों का मेरे पास प्राइवेट में मैसेज भी आया था, that is कि अभी ये जो भी पेंडेमिक है, ये कोविड-19 की वजह से कस्टमर जो है वो कंजर्वेटिव हो गए, they are not spending much, right? So क्या ये बिहेवियर कितने समय तक चलेगा या फिर कितने टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगा? How the customer will like come back to their normal spending behavior? देखिए, मैंने एक फिगर दिया था कि हमारा एक दिसंबर जनवरी तक का तो फिगर तो था ही था कि इंडिया में 17 से लेकर के 20 लाख करोड़ का बिजनेस हर महीने होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में. When I'm saying this business, it does not count of export. ये हिंदुस्तान के अंदर का बिजनेस है. बट मैं और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम उस रेस्टोरेंट में या तो कैसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में कितना खर्च करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस पर कि मेरे जेब में कितना पैसा है. अभी हम लोग बहुत कंजर्वेटिव इसीलिए भी हो गए हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम पूरे तरीके से बंद होकर के पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कंजर्वेटिव हैं. मैं समझता हूँ ये कंजर्वेटिव अप्रोच, मेंटल लॉकडाउन जो है वो अभी और कुछ समय तक लोगों के मन में रहेगा, जब तक कि उनका वापस अर्निंग साइकिल उस लेवल तक नहीं हो जाएगा जितना पहले वो लोग कमा रहे थे, तब तक उसका एक्सपेंडिचर साइकिल भी उस लेवल तक नहीं आएगा. इट इज प्रोपोर्शनल. द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, द लेस यू अर्न द लेस यू स्पेंड. लेकिन एक बात तय है कि कुछ परसेंट कमी तो आएगी. इट में भी 2% 5% ये कमी तो आएगी क्योंकि मुझे आदत होगी, इसके बगैर चलता है तो मैं काफी कम तक चलाने की कोशिश करूंगा उसको. ओके. दूसरा जो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अभी इस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो भी पेमेंट्स अटके पड़े थे लोगों के, जहां से भी पेमेंट्स आने थे, वो सारे पेमेंट्स एकदम से रुक गए. वो पेमेंट्स रुकने की वजह से लोग जो है थोड़ा सा मतलब जो बहाना दे रहे हैं, वो लॉकडाउन का बहाना दे रहे हैं. और लाइक काफी सारी अनसर्टेनिटी भी है कि आगे बैंक्स कैसे फंक्शन करेंगे, किस तरीके से ये चलेगा. तो ये 3-4 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे को कि लाइक इस पे अपनी क्या मतलब आगे हाउ डू यू गाइड देम कि वो पेमेंट्स कैसे रिकवर करें या फिर कैसे उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है इसके अंदर में कि आने वाले समय में वही व्यक्ति बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा जो थोड़ा सा कैश रिच रहेगा. अब अभी देखिए, मार्केट को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए अभी 4 तारीख 5 तारीख को लॉकडाउन खुलता है और हम लोग अपने अपने एंटरप्राइज को ओपन करते हैं. अभी अगर मेरा काम मार्केट में, मेरा पेमेंट रुका हुआ है, तो मैं मार्केट में जाकर के पैसा मांगूंगा तो मुझे जवाब मिलने वाला है साहब अभी तो पैसा नहीं है, हम भी 1.5 महीने से बंद थे, अभी थोड़ा बिजनेस रोटेट होने दो, पैसा आने दो, उसके बाद में पेमेंट देते. तो प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि जो पेमेंट मेरा पिछले 3 महीने 2 महीने से रुका हुआ है, आने वाले और 2 महीने तक मुझे नहीं मिलेगा. सेम विल बी द कंडीशन, क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चर करके तो बेच नहीं रहा हूँ और मैन्युफैक्चर भी कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल ले रहा हूँ. आप समझो ना, मैं तो बीच में हूँ, मैं जहां भी हूँ मैं कहीं ना कहीं बीच में ही हूँ. मुझसे जो पेमेंट मांगेगा मेरा वेंडर, मेरा जो सप्लायर है, तो मैं भी उसको ये जवाब देने वाला हूँ कि साहब अभी तो मुझे मार्केट से पैसा नहीं मिला हुआ है, गिव मी सम टाइम. तो जो जवाब मुझे मिलेगा लगभग मैं वही जवाब दूंगा. लेकिन यहाँ जो कैश रिच होगा, अब देखिए मैं उसको अगर पैसा नहीं दूंगा तो वो मुझे ज्यादा माल नहीं देगा और मैं ज्यादा माल मार्केट में डाल नहीं पाऊंगा, तो ये साइकिल स्लो हो जाएगी. इसके अंदर में जो व्यक्ति पैसा अरेंज कर सकता है और वो उसको बोलता है कि साहब अभी माल मुझे जो दे रहा है वो तो कैश में दे या रेगुलर टर्म्स पे दे, ये पेमेंट मैं देखो थोड़ा सा रुक करके देता हूं मैं. और मैं समझता हूं कि बैंक्स इसके लिए हमारे साथ काम करने को तैयार रहेगी. अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की लिमिट है तो मैं समझता हूँ आपकी 10 लाख की लिमिट के ऊपर में आपको एडिशनल बैंक 1-2 लाख रुपए देने को तैयार रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक को इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक के साथ में कितना ज्यादा अच्छा कनेक्शन है. जब बिजनेस खुलेगा तब तो हर कोई बैंक में दौड़ेगा. ये 15 दिन के दरमियान आप बैंक मैनेजर को कॉल करके उसको हाय हेलो उसकी तबीयत लेकर के बात कर लीजिए एक बार, आप कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है ना. सर देखिए परिस्थिति तो आप ही समझ रहे हैं, लेकिन हमको तो बिजनेस चलाना है साहब. मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अरेंजमेंट मुझसे करके रख लीजिए, मेरे लिए करके रख लीजिएगा.
आपने अपनी दरखास्त अपना एप्लीकेशन अभी से डाल करके रख लिया, द डे यू रीच देयर, अभी भी बैंक खुले हैं साहब, बैंक खुले हुए हैं। आप अगर समय निकाल करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैंक जा सकते हैं और उसको हाय हेलो करके सिर्फ इतना बोल के आ सकते हैं, साहब मुझे लगेगा पैसा थोड़ा दे दीजिएगा। पहले से काम करके रखेंगे साहब। लॉकडाउन के बाद तो हर कोई दौड़ेगा, आग लगने के बाद तो हर कोई पानी लेने दौड़ेगा, लेकिन पहले से पानी की बकेट भर के रख लीजिए। आपको मालूम है ये आग लगी है, उसको बुझाना पड़ेगा, तो तैयारी करेंगे तो बैंक पैसा देगा साहब, 100%। देयर इज वन मोर क्वेश्चन सर, जो कि इसी से रिलेटेड है और आपकी फील्ड से भी है, काफी रिलेटेड है। दैट इज की डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिमांड है, आपने जैसा बोला कि डिमांड थोड़ा सा रिवाइव करेगी बाद में, जैसे हालात नॉर्मल होंगे, डिमांड विल रिवाइव। अभी इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके वेयर हाउसेज में काफी ज्यादा माल भरा पड़ा हुआ है, उनके वेयर हाउसेज में काफी ज्यादा स्टॉक है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है, वेदर दे शुड वेट, और क्या उनके लिए अप्रोच होना चाहिए? नहीं देखिए, मेरा कोई भी कमेंट लॉकडाउन के पहले के लिए तो लागू नहीं होता है। मेरा जो भी मैं कमेंट दूंगा, जो भी सजेशन दूंगा, मेरे अभिप्राय दूंगा, वो सब लॉकडाउन खत्म होने के बाद के लिए बात है। वेट करने का कोई बहुत ज्यादा बड़ा सेंस नहीं है। अभी आपका जैसे लॉकडाउन खुलता है, आपकी चीजों की रिक्वायरमेंट आती है, मैं समझता हूँ अपनी चीजों को आप लिक्विडेट करना शुरू कर दीजिए। मैंने ऐसे लिक्विडेट डज नॉट मीन कि उसको फेंकना शुरू कर दीजिए, औने पौने निकाल दीजिए। आपके मटेरियल की डिमांड मार्केट में है, तो जैसे डिमांड थी उस तरीके से दीजिए। हाँ, आपके मटेरियल को आप कैश जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट मटेरियल टू समबडी हु इज वेरी डिलेड पार्टी, try to find out parties who may take little less quantity but are giving payment upfront, ताकि आपकी साइकिल को अच्छे से चला सको। ओके, अंडरस्टूड। उसके अलावा सर सेम क्वेश्चन है, मतलब देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच इज वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड। द क्वेश्चन इज कि कोविड-19 का इफेक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या रहेगा? ऑटोमोबाइल के अलावा आपकी जो नाइट लाइफ इंडस्ट्री जो है, नाइट लाइफ इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट रहेगा? तीसरा जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, जैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, दे आर इनटू कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्विस टू बैंकिंग, लाइक टू बैंकिंग इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट्स। तो ऑटोमोबाइल, नाइट लाइफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंडस्ट्री, ये तीनों पे आपके क्या कमेंट्स है कि कोविड-19 का इफेक्ट इन पे क्या रहेगा? देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर में जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन जाता है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा डायरेक्ट असर उसके ऊपर में नहीं पड़ेगा, जितना असर उसके ऊपर में ऑलरेडी आ रहा है, बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी 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 टफ ट्रांजिशन फेज, वैसी चल रही थी उसके साथ, तो वो जो चल रहा है वो चलेगा। कोविड की वजह से कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा उसके अंदर में, ये मैं नहीं मानता हूँ उसके अंदर में, क्योंकि आने वाले समय में रेगुलर व्हीकल्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, वो होने वाला है काम, वो हो रहा है। तो कोविड-19 से उसके अंदर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैं समझता हूँ पेट्रोल अगर थोड़ा सा कम गवर्नमेंट करेगी, हालांकि उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो एक अर्निंग रेवेन्यू सोर्स है उनका, बट लोग घूमेंगे, लोग चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, जितनी चल रही थी उतनी ही गाड़ियां चलेगी। हाँ, महीना 2 महीना थोड़ा सा लोग, क्योंकि एनवायरमेंट को असर दिखा है कम गाड़ियों का, तो थोड़ा सा अंदर में फील रहेगा। तो जैसा पेट्रोल महंगा होता है तो लोग 3 दिन गाड़ी कम चलाते हैं, लेकिन चौथे दिन से रूटीन में आ जाते हैं, पैसा आ जाएंगे। सेकेंड यू सेड इज नाइट लाइफ इंडस्ट्री। नाइट लाइफ इंडस्ट्री के अंदर में यस थोड़ा सा अंतर आएगा, और वो भी कोविड का डायरेक्ट असर नहीं रहेगा उसके अंदर में, लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग विद द फैमिली। तो लोगों के साथ घर में रहने की जो उनको थोड़ी सी आदत पड़ गई है, तो वो अब बेवजह, और मैंने वैसे भी कहा था कि कोई नाइट क्लब में अगर क्राउडेड प्लेसेस में, पब्स में जाना, बार्स में जाना और डिस्कोथेक्स में जाना, ये लोग अभी भी अवॉइड करेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले 3-4-5 महीने तक के, क्योंकि बहुत जगह ये पढ़ने में आ रहा है कि ये जो पेंडेमिक है, ये वायरस जो है, ये रीअकर भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट लाइक टू टेक चांस ऑफ दिस। तो नाइट लाइफ इंडस्ट्री को थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा उसके अंदर में। एंड लास्ट यू आस्क्ड फॉर द सर्विस इंडस्ट्री, इसको मैंने समझता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस रन होना चालू हो जाएंगे तो हर किसी को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब लगने वाला है। इनफैक्ट जो सर्विसेज के अंदर में है, जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, उनके लिए तो आने वाले समय में मुझे बहुत बड़ा बूम दिख रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत काम होने वाला है। सर्विस अगर टेक्नोलॉजी के साथ में है, वंडरफुल, अगर लास्ट माइल डिलीवरी के साथ में है, वंडरफुल, ये चीजें बहुत चलेगी। इसको तो इनफैक्ट बेनिफिट होगा कोविड का। ओके,
अंडरस्टूड। इसके अलावा सर एक जो मेरे को तकरीबन 12 से 13 लोगों ने ये मैसेज किया प्राइवेट में कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हमारा जो स्टाफ है इसको कैसे मोटिवेट किया जाए सो दैट हम लोग उनसे ज्यादा आगे लाइक आउटपुट ले सके इन टर्म्स ऑफ वर्क। सो हाउ टू मोटिवेट आवर स्टाफ इन दिस लॉकडाउन टाइम? देखिए, स्टाफ अभी काम नहीं कर रहा है और स्टाफ अपने घर पे बैठा हुआ है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो स्टाफ के मन में आता है, वो ये है कि उसका जॉब अभी भी सिक्योर है। अगर मैं और आप ये कर सके हैं तो दैट इज वन स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन। सेकंड डोज ऑफ मोटिवेशन व्हाट यू एंड मी कैन वेरी इफेक्टिवली गिव देम इज 3-4 दिन 5 दिन में एक बार उसके साथ कॉल पे बात कर लीजिए। कैसे है ना, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना। हालांकि आपने उसको अगर सैलरी दे दिया है तो वो दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी अर्जेंट और वेरी इमरजेंट। बट उसको इतना आपने बोल भी दिया कि कोई भी तकलीफ हो तो बगैर झिझक मुझे कॉल कर देना, जरा भी संकोच मत करना। सेकंड स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन। एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन ये कि उसके साथ अगर आपका स्टाफ किस लेवल का है दैट यू नीड टू फिगर आउट। कभी एक बार ऐसा बात कीजिए कि भाई चलो हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे आते हैं और अभी 1-1.5 महीना गुजर गया है, आने वाले 15 दिन और है हमारे पास में, मतलब हम लोग 1.5 महीने बाद मार्केट में जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से हमने मार्केट में कैसे काम करेंगे तो हम बहुत तेजी से उभर के आएंगे? जब उसको ये लगेगा तो उसको लगेगा कि यार इतने टफ सिचुएशन में भी माय ओनर और माय बॉस और माय सीनियर इज आस्किंग माय ओपिनियन, तो नाउ इट बिकम्स माय रिस्पांसिबिलिटी। वो जो भी प्लान सजेस्ट करता है उसका वो ओनर्स लेने को तैयार हो जाता है और वो उसके ऊपर में थॉट प्रोसेस देगा। तो मैं समझता हूँ दीज 3 आर द स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ मोटिवेशन जो हम उसको फिलहाल ऐसी परिस्थिति में दे सकते हैं। अंडरस्टूड। सर इसके नेक्स्ट जो है दैट इज व्हिच आई थिंक कि हमको थोड़ा सा कवर करना चाहिए। दिस हैज नॉट बीन अ क्वेश्चन बट व्हाट आई थिंक इज दिस एक्चुअली रिलेट्स टू आवर टॉपिक टुडे। अभी जैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अभी एक यू नो दे टुक अ डिसीजन टू पुट सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पिछले साल का जो टोटल एफडीआई का इन्वेस्टमेंट था इंडिया में दैट इज $14 बिलियन। अभी ये $14 बिलियन का जो भी इन्वेस्टमेंट था इंडिया में, स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप्स में $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें से जो इंडियन वीसीज का कंट्रीब्यूशन था दैट इज ओनली 10%। तो हमारा अभी जो ट्रेंड चल रहा था पहले पिछले साल में स्टार्टअप्स का, इट इज टू ब्रिंग इन मनी आइदर फ्रॉम जापान और फ्रॉम चाइना, राइट? कहीं सॉफ्ट बैंक से लेके आएंगे या फिर अलीबाबा से लेके आएंगे, दैट इज बीइंग ट्रेंड। आपको क्या लगता है कि ये जो एफडीआई बैन किया है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अभी, वुड दैट गिव अ बेनिफिट टू आवर इंडियन वीसीज और नॉट? मतलब वो अपने इंडियन वीसीज को थोड़ा सा बेनिफिट करेगा, इंडिया में पैसा रोटेट करने में हेल्प करेगा, या फिर व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए साहब, मेरी जहां तक सोच जाती है, मुझे लगता है कि ये जो बाहर से पैसा लाने की रोक लगाई है ये कहीं ना कहीं बहुत गहरी सोच के साथ में उसके अंदर है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ही पैसा सॉफ्ट बैंक से मिलता है या अलीबाबा से मिलता है तो आप उनसे लेना ज्यादा पसंद करोगे या आप इंडिया के किसी वीसी से लेना पसंद करोगे? यू विल लाइक टू टेक दोज लोन्स मोर कंफर्टेबली, क्योंकि आपको लगता है कि उनका नाम मेरे साथ में जुड़ता है। और हम भी ज्यादा, आपने खुद ही कहा कि हम भी इंटरेस्टेड थे ऐसे लोगों से पैसा लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाम को भी हम बाद में यूज करना शुरू करते हैं। उस केस में बहुत सारे इंडिया में जो पैसा लगाने को तैयार थे, शायद वो पैसा ढंग से लगा नहीं पा रहे थे। पैसा तो इंडिया में भी बहुत पड़ा हुआ है पर वो लगा नहीं पा रहे थे। ये शायद एक वजह हो सकती है। शायद आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू से दिस इज द रीजन, बट दिस कुड हैव बीन वन स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्लाइटली डिस्करेज द मनी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा चाहिए, बाहर से अगर नहीं आएगा तो आप मेहनत करके लोकल से पैसा लेना शुरू करो, तो लोकल का पैसा रोटेट होना चालू होगा। तो ये एक वजह हो सकती है। मैं समझता हूँ जो भी डिसीजन लिया गया, डिसीजन आगे जाकर के इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। जो नेक्स्ट सर क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन से काफी सारे सवाल आए यहाँ पे, काफी कुछ मतलब बहुत सारे डिस्टॉर्टेड क्वेश्चंस आए, बट उनको अगर मैं सम अप करूं और उनको अगर मैं एक लार्जर उसमें पूछूं तो दैट इज इन माय माइंड आल्सो आई वांटेड टू आस्क यू दिस। अभी सर इंडिया में तकरीबन 850 यूनिवर्सिटीज है, 857 कुछ यूनिवर्सिटीज है। ये सारी यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक्स पूरा रुका हुआ पड़ा है। दे आर थिंकिंग कि एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी हम लोग क्लासेस दोबारा से रिवाइव करेंगे, बट काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन मीडियम में जाना पड़ेगा।
जो थोड़े से नॉन क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्सेज है, जहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, जहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ के लोग वो कोर्सेज को कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उन कोर्सेज को ऑनलाइन करना शुरू करो. अभी a lot of university has also started doing this. कुछ थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर यूज करके कर रही है. किन्हीं यूनिवर्सिटीज ने खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया, क्योंकि देवर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2008-2012 वाला रिसेशन से कि भाई कुछ ना कुछ ऑनलाइन में भी अपने को करना पड़ेगा. इससे सर द क्वेश्चन इज कि ये जो पूरा सिचुएशन अभी अराइज हुआ है, वुड दैट प्रमोट मर्जर एंड एक्विजिशन फॉर द यूनिवर्सिटीज? कि अगर मानो कि कोई यूनिवर्सिटी और कोई कंपनी है, तो उस यूनिवर्सिटी ने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इन द टेक्नोलॉजी, एंड ऐसे कुछ सिचुएशंस होने वाले हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक? और ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से आने वाली है क्या? देखिए, आपके सवाल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. इसके अंदर में आपका जो पहला पार्ट में जो कहता हूँ ये है कि आने वाले समय के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन जाएंगे और जाना ही पड़ेगा. यूनिवर्सिटी के पास में अभी फिलहाल इसके और कोई ऑप्शन नहीं है. इवन यूनिवर्सिटी बहुत लेवल पे स्कूल्स ने भी ये काम चालू कर दिया. यूनिवर्सिटी जितना जल्दी करेगी उतना ज्यादा बेटर है उसके अंदर में. और बहुत जैसा आपने कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके लिए पहले से तैयार भी थी. तो ये तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन इज नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में चर्चा भी किया और ये होने वाला है. यूनिवर्सिटीज नहीं करेगी तो दे विल लूज देयर कस्टमर्स, क्योंकि लोग यहाँ बैठ करके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ में जुड़ जाएंगे. वो तो होने वाला है, तो वो करेगी. दूसरा जो सवाल है आपका कि यूनिवर्सिटीज किसी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ करके ये प्रोग्राम्स को करने की कोशिश करेगी या मर्जर एंड एक्विजिशन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बनेगा, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, क्योंकि स्टिल इंडियन यूनिवर्सिटीज की मेंटालिटी जो है उस लेवल तक पहुंची नहीं है कि वो कॉर्पोरेट थिंकिंग कर सके. अभी भी हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो प्योरली एजुकेशनल थॉट प्रोसेस के साथ में चलती है, whereas वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैव गॉट दैट कॉर्पोरेट थिंकिंग. वो अपने लिए रिसर्च भी तैयार करवा सकती है, वो अपने लिए कंपनीज भी जोड़ सकती है. अभी हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल के थॉट प्रोसेस में नहीं आई है. बेसिकली वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम को चलाती है, जहाँ विद्या वाली काम की बात करते रहते हैं. वो बड़ी सोच अभी इतनी लेवल पे आई नहीं है. मे बी अनदर 2, 3, 4 years, 5 years, नो. कहीं वन बिट्स एंड पीसेस में होगा तो बात अलग है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली चीजें नजर नहीं आई, दिखता नहीं है. Okay. The next question is related to agriculture industry, sir. अभी क्या हुआ है कि farmers के लिए government is doing a lot of things though, but still they are facing problem in logistics, right? उनका जो भी produce वो कर रहे हैं उसको ले जाके बेचने तक, या फिर जो भी उनका logistics involved रहता है पूरा farming में, they are facing a lot of problem related to logistics. So what is your take on this? कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक फार्मर्स के प्रॉब्लम का सवाल है, आज तक मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर में एक्चुअल प्रॉब्लम बाहर निकल करके आया ही नहीं है. जितने भी फार्मर के प्रॉब्लम दिखाए जाते हैं उसमें से मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है वो फ्रेम करके बताए जाते हैं. लेकिन हकीकत में देखा जाए तो पॉवर्टी सबसे बड़ी, अगर हम मान के चले, इफ आई अज्यूम कि सबसे बड़ी पॉवर्टी का अगर कोई सेगमेंट है तो वो फार्मर्स है, ये मान करके चलता हूं मैं, तो उनके पास में एक ही तरीका है साहब, अनलेस एंड अनटिल दे गो इनटू द कोऑपरेटिव अप्रोच, तभी तक उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. द मोमेंट दे ब्रिंग इन एन एक्सटर्नल एजेंसी जो उनके फार्म आउटपुट को लेकर के मार्केट में जाएगी, वो एक्सप्लॉयटेशन का काम चालू हो जाएगा. अनलेस एंड अनटिल दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव अप्रोच, उनके लिए बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा तेजी से कुछ बदलाव आएगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है, अज्यूमिंग कि बहुत बड़ा सेगमेंट वही है पॉवर्टी वाला. तो बट अदरवाइज मैं समझता हूँ फार्मर्स अगर सही ढंग से फार्मिंग कर रहे हैं, साइंस आ रहा है उसके अंदर में, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज एनीबॉडी हु इज अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इनटू द फार्मिंग इज मेकिंग गुड आउटपुट ऑफ इट. सर, ये this is the last question which I'm asking you. It's the same, मतलब जो पहले क्वेश्चंस आए थे वैसे ही क्वेश्चंस है, बट थोड़ी सी इंडस्ट्रीज बदल गई हैं. What do you think will be the effect of COVID on digital marketing industry, real estate industry and textile industry? So digital marketing, real estate and textile, these are the three baskets. So I've actually kept it for the last की हम लोग लास्ट पे इसको कवर करें. तो मैं तीनों को अलग अलग करके जवाब देता हूँ. डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमने इसके बारे में चर्चा पहले भी किया कि इट इज what I understood is it is sitting on the verge of experiencing another boom. अब लोग डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस और समझ जाएंगे. सब देखिए,
बहुत सिंपल, जो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी, मैं दोनों चीजों को जोड़ के चलता हूँ, क्योंकि एक लेमैन के लिए डिजिटल मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी ही, एक ऑर्डिनरी मार्केट में अगर मैं गांधीबाग की किसी दुकानदार में या किसी किराने की दुकान में जाता हूँ, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग मतलब वो है, वो टेक्नोलॉजी को समझते नहीं, उसके लिए जो भी चीज कंप्यूटर से या से करना पड़ता है वो सब टेक्नोलॉजी में जाती है। तो वो व्यक्ति ने अभी घर में बैठ करके अपने मोबाइल पे जूम की ऐप को डाउनलोड करके इधर उधर के प्रोग्राम अटेंड कर लिए, उसको समझ में आ गया कि ये तो होता है यार बहुत सारी चीजें, तो मैं अपने बिजनेस में भी कर सकता हूँ। अब उसका सोच का चक्का चालू हो गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज सिटिंग ऑन द वर्ज वेयर इट विल एक्सपीरियंस अ बिग बूम नाउ। ये तो होने वाला है, कोविड कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सेकंड इंडस्ट्री यू टॉक अबाउट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रियल एस्टेट बोला आपने? जी सर। सेकंड इंडस्ट्री कौन सी बोला? रियल एस्टेट। Real estate, and third is textile. Real estate was otherwise also facing a tough time, and that same tough time is going to continue. क्योंकि अब लोग किसी भी तरीके का बड़ा पैसा खर्च करने के लिए, unless and until it is an emergency for him, वो खर्च करने की राह पर नहीं जाएगा। अभी जो फ्लैट लेने का जिसने पिछले साल सोचा भी था दिवाली पे कि अगले साल हम फ्लैट ले लेंगे, वो अपने फ्लैट लेने की ख्वाहिश को मैं समझता हूँ साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए और पोस्टपोन कर सकता है। क्योंकि रेंटल जहां था वो अगर उसको परेशान भी कर रहा था, तो अब वो सोचेगा रेंटल वाली इनकम आ रही है ना, चुपचाप रहो, कि दोबारा जाएगा नहीं। और प्रॉपर्टी के रेट में समझता हूँ कि और भी थोड़े से भी मार्केट ओपन होगा तो थोड़े से और लोअर साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास में स्पेयर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जो थी वो अब बहुत सारी लग गई है, और उसको लगा कि यार एक्स्ट्रा इनकम, स्पेयर मनी पड़ा हो तो उसको रहने दे, ऐसी मुश्किल परिस्थिति फिर से आ गई तो वो स्पेयर मनी अपने पास रखेगा, वो खर्च नहीं करेगा। तो रियल एस्टेट विल keep on facing the difficulty which it was facing. And finally the textile industry. टेक्सटाइल में भी हाँ बूम अभी बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इंसान को थोड़ा मिनिमल में जीने की आदत पड़ गई है। लेकिन ठीक है, जिसको कच्चा बनियान चेंज करना है उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सोच रहा था कि जीन्स लेना है, ट्राउजर लेना है, शर्ट लेना है, टी शर्ट लेना है, वो थोड़े से पोस्टपोन करेगा। 3-4 महीना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अभी बहुत ज्यादा काम उसमें नहीं होगा। मैं समझता हूँ जितना जरूरी है उतना ही करेगा इंसान, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक लग्जरी और एक नेसेसिटी। तो कपड़ा जितना नेसेसिटी के लिए होगा उतना ही चलेगा। जो कपड़ा लग्जरी में शिफ्ट हो गया वो अभी फिलहाल 4-6 महीने नहीं जाएगा, तो वो थोड़ा सा टफ पीरियड है। इट मे नॉट सी अ डाउनफॉल, बट इट्स अ टफ पीरियड फॉर टेक्सटाइल के लिए। Okay, thank you so much, sir.